امن کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتکاری، وزیر اعظم کا اہم بیرونی دورہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عربیہ سے 2 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کی حدود میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے سلامی دی۔ قطری وزیر مملکت سلطان بن سعد نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات ہوئی۔ خلیج سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر ملکوں پر حملوں کی مذمت، عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان اور قطر کا سیکیورٹی، دفاع اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کمیشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد کی امن عمل پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضری بھی دی، ملک و قوم کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم کی آمد پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، فیلڈ مارشل کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم پختہ ہے۔ تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ کا پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی قیادت نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد مذاکرات کرانے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ملکی دورے پر موجود ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ حملوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹھاگس کی دھمکیاں، کہا ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ اور ان کی صلاحیتوں میں کوئی برابری نہیں۔ ایران سن لے، امریکہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایران کے پاس نیوی نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا قذافی اور بحری دہشت گردی ہے۔ بحری راستوں کی بندش ایران جانے والے تمام جہازوں کے لیے ہے۔ جنرل ڈین کین بولے، ایران کی مدد کرنے والے ہر جہاز کا پیچھا کریں گے۔ جنگ اختتام کے قریب ایران معاہدہ چاہتا ہے۔ اگلے 2 دن انتہائی اہم اور غیر معمولی ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے معاہدہ زیادہ بہتر آپشن ہے۔ تہران کو تعمیر نو کا موقع ملے گا۔ ایران میں انتہا پسند افراد اب موجود نہیں ہیں، مختلف نظام قائم ہے۔ ایران کے حملوں پر خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات حملوں پر حیران ہوئے۔ ایران پر حملہ نہ ہوتا تو وہ 1 یا 2 ہفتے میں ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ 1 گھنٹے میں ایران کے تمام پلانٹس اور پلوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ نیٹو ماضی میں ساتھ کھڑا ہوا اور نہ مستقبل میں ہوگا۔ چینی صدر نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر اتفاق کیا۔ وہ چند ہفتے میں چین جائیں گے اور صدر شی جن پنگ گلے لگائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیوچ کہتی ہیں، امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی درخواست سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ پاکستان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ کر دی۔ ایرانی بندرگاہوں سے روانہ جہازوں کے خلاف ناکہ بندی کی۔ ایران پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھنے کا خواہش مند ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا
तबादला जारी है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद आमद की कवी इम्कानात हैं। ईरान के नुकसानात के इज़ाले और पाबंदियों के खात्मे की बात की जाएगी। ईरान को एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हक है। आबनाए हरमस की बंदिश की वाहिद वजह अमरीकी और सियोनी जारियत है। लिबनान में जंगबंदी किसी भी मुआहदे का लाजमी जुज़ होगा। ईरान का हमास के साथ भी खड़े रहने का आज़म। अमरीकी सेनेट में जंगी इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। सिर्फ एक रिपब्लिकन सेनेटर ने करारदाद के हक में वोट दिया। सेनेट में 47 के मुकाबले में 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद। करारदाद का मकसद कांग्रेस की मंजूरी तक ईरान जंग को रोकना था। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब से मौसूल $2 अरब सऊदी अरब से $2 अरब की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की गई। $2 अरब मिलने से मुल्क की ज़र मुआवजा ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को रवा माह ही यूएई को $3.5 अरब की अदायगी करनी है। यूएई ने अपने डॉलर डिपॉजिट रोल ओवर करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने रवा माह ही यूरो बॉन्ड मेच्योरिटी की मद में भी $1.2 अरब अदा किए थे। यूएई को $3 अरब वापस करने के इंतजामात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक यूएई को $2 अरब 17 अप्रैल, बाकी मानदा $1 अरब 23 अप्रैल को अदा करने का प्लान है। पाकिस्तान ने इमारात को $45 करोड़ का 30 साल पुराना कर्ज भी वापस कर दिया। सऊदी अरेबिया की $3 अरब इजाफी माली सहूलत से खिलाफपुर हो जाएगा। सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट का हुजूम बढ़कर $8 अरब हो जाएगा। डिपॉजिट के अलावा पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत भी मिलने की तवक्को। IMF से अगली किस्त में $1 अरब 21 करोड़ अगले माह मिलने का इम्कान। इस वक्त पाकिस्तान के पास सऊदी अरेबिया, चीन और अमारात के $12 अरब डिपॉजिट हैं। नाकाबंदी करके समुंदर से ईरानी तिजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने बताया कि एक भी ईरानी जहाज आबनाए हरमस से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर आबनाए हरमस से गुजरा। ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंग बंदी की खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा अमरीकी नाकाबंदी पर मुनासिब जवाब देने की धमकी। खलीज फार्स बहरा ओमान से तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का जनूबी इलाकों की मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां 3 शख्सियात और 17 इदारों पर लगाई गई। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ये अनासर ईरानी ऑयल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा है। ईरान 90% तेल चीन को फरोख्त करता है। ईरानी ट्रांजैक्शन साबित हुई तो नई पाबंदियां लग सकती हैं। दीगर ममालिक को आगाह कर दिया है कि अगर वो ईरान का तेल खरीद रहे हैं या उनके बैंकों में ईरानी रकूम मौजूद है तो उन पर भी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने सुबह गैलान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से मुबैना ताल्लुक के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। खबरसा इदारे अरना के मुताबिक गिरफ्तारियां पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस एहलकारों की कार्रवाई के दौरान अमल में आई। गिरफ्तार अफराद पर हसास फौजी और सिक्योरिटी मकामात की तस्वीर और लोकेशन मोसाद को देने का इल्ज़ाम। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर हमले, मजीद 21 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 2167, जख्मियों की 7061 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में अहम पुल तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लेबनान के इलाके बंत जबील में हिज़्बुल्लाह के 70 ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया गया। लेबनान से दागा गया एक ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। दूसरी जानिब कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 मुल्कों की इसराइली हमलों की मज़म्मत। लेबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान में जो रैलियों और हिमायत हम देख रहे हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तकामत के साथ हमारी हिमायत की वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की अवाम की भरपूर हिमायत के लिए शुक्रगुजार हैं, सलाम पेश करते हैं।
पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाक बहरिया की तकनीकी बरतरी और अमली महारत का आकाश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत पंजाब इलाकाई रूट्स पर जदीद तरीन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन 2.25 घंटे में सफ़र तय होगा। शाहदरा से नारोवाल और नारोवाल से सियालकोट रूट पर ट्रेन चलेगी। रायविंड कसूर पाकपतन से लोधरा तक नई ट्रेन चलेगी। शेखुपुरा जड़ामवाला शोरकोट पर ट्रेन चलाई जाएगी। लाला मूसा सरगोदा रूट पर भी नई ट्रेन चलेगी। फैसलाबाद चकजुमरा शाहीनाबाद और कोट अदू DG खान कश्मोर रूट्स भी शामिल किए गए हैं। पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें फ्राहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। सूबे में जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। हर डिवीज़न में इलेक्ट्रो बसों के लिए ख़ुसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला ने तहसील सतह पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जामे प्लान भी तलब किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ई-बाइक पर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा वसाइल की कमी नहीं है, कमज़ोर रिकवरी निज़ाम असल मसला है। सिंध बैंक की ट्रेड फाइनेंस सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मेहनत कशों के हकूक़ की पासदारी करते हुए कानूनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। सिंध काबीना का कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी मिडवाइफ वर्कर्स की तनख्वाहें जारी रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का मार्केट कमेटियों को पेंशन और रिटायरमेंट मुराद की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारवाल में मीडिया से गुफ्तगू का कोशिश है मुज़ाकराती अमल को नतीजा खेज़ बनाया जा सके। अमरीका और ईरान की क़यादत के बयानात से भी उम्मीद झलक रही है। जंग ख़त्म होने के साथ पाकिस्तान सिर्फ नहीं 193 मुल्कों की मईशत का मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है। अगर तनाज़े तवील पकड़ता है तो आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरतब होंगे।